सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में। जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में, सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब भी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार, जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब भी चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा, जो मंदिर के होंगे खत्म, जादूगरी होगी ऐसी क्या होगी जब। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट खुशी जैन, और मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त आशवी सोनी। एंटरटेनमेंट भी होगा और इंफॉर्मेशन का तड़का भी होगा, फुल ऑन धमाका। और शो में होंगे हमारे प्यारे जीनियस जो पूछते हैं ऐसे सवाल जो होते हैं थोड़े मिस्टीरियस। क्या आप तैयार हैं अपना दिमाग घुमाने के लिए? क्योंकि यहाँ है डू यू नो सेगमेंट, जहाँ हर फैक्ट छुपा है एक सरप्राइज में। ओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई सपना नहीं है, आज शो में होने वाला है एक ऐसा ही करिश्मा जहाँ हंसी भी होगी और हर पल में छुपी होगी एक नई सीख भी। सो फ्रेंड्स, आर यू रेडी? जब मस्ती का होगा मैजिक और शो में आएगा लॉजिक, मजा तो आएगा ना मेरे दोस्त। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारा शो शुरू होने वाला है फुल धमाकेदार अंदाज में। तो देर किस बात की, मैं तो हूँ बेकरार अपने प्यारे दोस्तों से मिलने के लिए बार बार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की। आजकल दोस्तों के बीच बहुत अनबन हो जाती है, तो उसको कैसे सुलझाएं? बिल्कुल, क्योंकि दोस्ती में कभी कभी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं लेकिन उन बातों को सही तरीके से सुलझाना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे शो में कुछ ऐसे जूनियर इनोवेटर्स आने वाले हैं जो सिर्फ सोचते नहीं पर करके दिखाते हैं, कुछ अलग कुछ हटके। तो चलो मिलते हैं उन छोटी उम्र के बड़े सोच वाले स्टार से एंड देख लेते हैं उनका इन्वेंशन कि उन्होंने करा क्या है। Good morning everyone, I'm Priyanshi Gupta and today I'm delighted to be here to present this remarkable and innovative project. Joining us we have Akshita and Rashi, the young brilliant minds of 9th standard of NC Jindal Public School, Punjabi Bagh. So, the project title Natural Insecticides is what they have been working on to make it cost effective and eco-friendly solution for farmers. So Akshita, what motivated you कि आप इस project पे काम करें? Agriculture is the backbone of Indian economy, but one of the biggest challenges that our farmers face is the constant battle against insect pests. They are tiny creatures but cause a huge agricultural loss and damage to our crop plant and its health. तो क्या आप बता सकते हैं आपने क्या ingredients use करे हैं और वो उसकी effectiveness पे कैसे impact करते हैं? So the three heroes of a natural insecticide are chrysanthemum flower, neem leaves and ginger. For chrysanthemum flowers, we have extracted pyrethrins. Pyrethrins are a group of 6 natural compounds which have insecticidal properties. They act as neurotoxin, damaging the nervous system of insects, causing paralysis and the final death of the insect. In our insecticide, we have replaced the chemical synergist with 2 natural synergists that are neem and ginger. From neem, we have extracted azadirachtin and salicylic. That is synergist but also acts as insect repellents and inhibit the growth. Then comes ginger. From ginger, we have extracted ginger extract which stops the reproduction. Wow, that's really insightful. तो क्या आप बता सकते हैं आपने exact process क्या use करा है इस insecticide को बनाने के लिए? We have taken 2 gram chrysanthemum flowers, 1 gram neem leaves and 0.5 gram ginger. They were crushed separately and added to 50 ml warm water for the extraction of compounds. Then these compounds were mixed together, and as we know, these compounds are not water soluble, so we have taken mustard as a natural emulsifier. We added 0.16 gram mustard to all these mixed solutions and left it for 24 hours. Then we diluted this solution to make the final natural insecticide.
तो आपने क्या ये कभी किसी पेस्ट्स पे ट्राई करा है? What were your observations? Firstly, we tested it on aphids present on jasmine plant leaves. We sprayed it twice in a day and observed that the aphids which were earlier moving first showed excitation, then paralysis, and then they were finally found dead. Next, we tested it on a small tomato plant infested with white flies. The top count was 170. We sprayed our insecticide twice a day. Within 5 days, the results were clear. So how does it benefit farmers in the long run? As it is a cost-effective and sustainable alternative to all the chemical insecticide, and moreover, it is biodegradable and do not leave any residue. तो आप कह रहे हैं कि ये एनवायरनमेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है और कोई रेजिड्यू भी नहीं छोड़ता है? दैट्स सो अमेजिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम बुलाने वाले हैं हमारे जूनियर इनोवेटर्स को। सो लेट्स वेलकम राशि एंड अक्षता फ्रॉम एनसी जिंदल पब्लिक स्कूल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मस्ती की पाठशाला में। हेलो राशि, हेलो अक्षता। हाय राशि दीदी। हेलो अक्षिता दीदी। हाय। मेरे को जानना था कि आपको ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड का मोटिवेशन कहाँ से मिला? As we know that agriculture is backbone of our Indian economy, but one of the biggest challenges that our farmers face is the constant battle against insect pests. And we have chemical insecticides, but they do more harm than good. So this motivated us to invent a natural insecticide, as it is rightly said that nature provides us the best solution. It's just we have to learn to work with it. आपने बताया कि natural insecticides are made of all the natural things. Then how can they be so effective? So the three natural heroes of our insecticide are neem leaves, chrysanthemum flowers, and ginger. From chrysanthemum flowers, we have extracted parathrins. They damage the nervous system of insects and also prevents them from breeding. From ginger, we have extracted zingiberine and gingerol, and from neem leaves, we have extracted azadirachtin and salicylic. तो जैसा कि माना जाता है कि जो नेचर होता है वो इटसेल्फ बेस्ट फिजिशियन होता है, तो आपका ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड फार्मर्स की हेल्प कैसे करेगा लंबे टाइम के लिए? हमारा इंसेक्टिसाइड ऑन फार्म प्रोडक्ट से बना है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल है और ये सनलाइट में आके ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फार्म पे कोई रेसिड्यू भी नहीं छोड़ता और एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड भी बन जाता है। Wow! But does your project benefit rest of the Indian society? Yes, there is more to this amazing natural insecticide. We all know that mosquitoes are the important vectors for diseases like malaria and dengue. Also, the population of mosquitoes known as culex has increased from last 1 month as they have become mosquito spray resistant. But our natural insecticide also damages their nervous system and prevents their breeding. थैंक यू सो मच राशि, थैंक यू सो मच अक्षता। आप हमारी मस्ती की पाठशाला में आए और हमारे फ्रेंड्स और हमको इतना इंस्पायर किया और इतनी नॉलेजफुल इनसाइट्स दी। थैंक यू सो मच। अक्षिता और राशि, आप दोनों से मुझे मिलके बहुत खुशी हुई। आप भी मेरी तरह बिल्कुल जीनियस हो। थैंक यू जीनियस प्यारे। Oh, you're welcome, you're welcome. पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। Friendship is an essential part of a human life, providing emotional growth, happiness, and a sense of belonging. So let's welcome Dr. Ridwana Sanam. She is a holistic well-being coach. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मस्ती की पाठशाला में। थैंक यू सो मच। मैम, आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों पर इतनी लड़ाई कर लेते हैं। How can we stop small disagreements turning into big arguments? I believe we need to understand first friendship is heart to heart. Am I right? It's not brain to brain. So fight can be the conflict comes at a brain level. So that means there is definitely something called mismatch, conflict. Now, if our youth, students nowadays, young generation, they are technology generation. So they make friends online.
सो सबसे बड़ी बात है कि हमें जो फ्रेंडशिप है वो परख करके फ्रेंडशिप करनी चाहिए। सबसे पहले जब आप फ्रेंड चूज़ करें तो थोड़ा सा केयरफुली करें, उसके एट्रीब्यूट्स देखिए, उसकी संस्कार देखिए, क्या मेरा इसके साथ मिलता जुलता वाइब है। अगर मिलता जुलता वाइब है तो आपने पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया ठीक से फ्रेंड बनाना है, और जिसके साथ आपकी नहीं बनती है दैट मीन्स दैट फ्रेंड is for some motive, it is a need base. When it is need based, now we need to understand what is it trying to fulfill. Is it fulfilling my emotional need or intellect or intelligence or some definitely कुछ hidden agenda है उसमें। बस हमें पता होना चाहिए हमें उस फ्रेंडशिप किस बेस पर है, और जब फाइट होती है तो उस टाइम पर आर्ग्यूमेंट और बढ़ सकता है। नाउ हाउ कैन वी रिजॉल्व? सबसे पहले फॉरगिवनेस, दैट मीन्स वी विल से सॉरी। द पर्सन शुड से सॉरी बिकॉज इट इज़ फ्रेंडशिप। ऐसा नहीं कि वो उसने फाइट किया उसकी गलती है मैं क्यों सॉरी बोलूँ, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अ गुड फ्रेंड। अ गुड फ्रेंड विल से सॉरी फर्स्ट। दैट मीन्स वी नीड टू फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। वेरी ट्रू मैम। मैम, हमें अपने फ्रेंड्स बनाने कैसे चाहिए ताकि वो हमें अंडरस्टैंड कर सके? This is a very simple thing because if we understand ourselves, that means हम अपने दोस्त को भी चूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो पहले खुद को अंडरस्टैंड, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वी कॉल इट। इफ़ आई नो कि मेरी ये चीज़ें हैं, मेरी इमोशन ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है, तो उसी में जो बराबरी का है उसी के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है। बिकॉज आई सेड इट इज़ इमोशनल वेलबींग, इट इज़ हार्ट टू हार्ट, इट इज़ नॉट ब्रेन टू ब्रेन। सो अगर हम ब्रेन से सिलेक्ट करते हैं किसी को तो उसको फ्रेंडशिप नहीं कहेंगे, उसको हम ये कहेंगे हमारा कलीग है, हमारा बैचमेट है, हमारा जानकार है। लेकिन फ्रेंडशिप कम्स विद अ सेंस ऑफ इमोशनल वेलबींग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, और आगे का जो फ्रेंड बनेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हुए तभी वो हमें अंडरस्टैंड करे। अब मैम, क्या मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? यस प्लीज़। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई खास दोस्त अगर आपको इग्नोर करे तो फिर आपको सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए? प्लीज़ बताइए ना मैम। इस सिचुएशन में हमें थर्ड पर्सन को लाना ज़रूरी है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, जो सॉल्व करे, रिजॉल्व करे कन्फ्लिक्ट को। तो एक तो किसी को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हम दो बैठते हैं, हमें बात करनी है, आप थर्ड पर्सन हैं, आप सुनिए और आप हमारा आपस में रिजॉल्व करा दीजिए अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो मेरे ख्याल से ईगो छोड़ के, बिकॉज ईगो आता है बीच में, दैट मीन जो हमें इग्नोर कर रहा है उसमें ईगो है या वो हमसे नाराज़ है। ऐसे सिचुएशन में हमें अपना ईगो छोड़ के उस फ्रेंडशिप का जो कनेक्शन है, फ्रेंडशिप कनेक्शन होता है, अटैचमेंट नहीं। तो ईगो का और अटैचमेंट का, अनहेल्दी इमोशंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अपना ईगो छोड़ के हम ही बोलेंगे आपसे मुझे बात करनी है, प्लीज़ आप मुझे 10 मिनट अपने दे दो, मैंने अपनी बात रखनी है। और जब हम किसी की बात सुनेंगे दोस्त की या हम अपनी बात करेंगे तो सबसे पहले ऑनेस्टी मेंटेन रखें, जो सच है वही बोले। और सबसे बड़ी बात है उसको बोलते हुए एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, ताकि आगे वाले को एहसास हो, एम्पैथी एंड कंपैशन को मेंटेन करे और आगे से भी और अपना भी नॉन जजमेंटल कन्वर्सेशन रखे। ओ जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप सही कर रही हैं। आपकी बात सुन के मुझे एक गाना याद आ गया, गा दो क्या? यस प्लीज। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कैसा लगा मेरा गाना? बहुत बढ़िया, आप बड़े प्यारे हैं। मैम, जब हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है ना तो हम खुद सैड हो जाते हैं और पूरे दिन हमारे दिमाग में वही चलता रहता है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। हम उसको कैसे ठीक करें? सबसे पहले अपने आप को हीलिंग पे काम करें। अनहील्ड वे में हम अगर दोस्त चेंज कर देते हैं, दूसरा फ्रेंड हमने उसको कंपनसेट करने के लिए बनाया, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है अपने आप को खुश रखें और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें। जितने दिन वो दोस्त हमें इग्नोर करे या फाइट चल रही है, जब दोस्ती होती है तो कन्फ्लिक्ट तो मतलब होता ही होता है, लेकिन उसको एक्नॉलेज करना, उसको एक्सेप्ट करना कि मेरा दोस्त ऐसा ही है और ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं सच्ची दोस्ती निभाने वाली हूँ या निभाने वाला हूँ, मैं इसको ठीक कर लूँगी थोड़े दिनों में। बिकॉज फ्रेंडशिप एक जर्नी है, ये पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और इमोशनल वेलबींग के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा मैम।
थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। Mom, I want to ask that मेरा कोई friend है and he is not good in his academics and my parents know about it and my parents said that इसकी company अच्छी नहीं है. So in this situation what should I do? I believe everyone has freedom to choose a friend and बच्चे मन के सच्चे, बच्चे जिसको चूज़ करते हैं अपना दोस्त वो उनकी वाइब का होता है, मतलब फ्रेंडशिप सोल लेवल और हार्ट लेवल पर चूज़ की जाती है, लेकिन पेरेंट्स इंटेलेक्चुअल लेवल पर उसमें अपनी सजेशन देते हैं या अपने एक्सपीरियंस में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, लेट अस से बैड एक्सपीरियंस, तो उनको लग रहा नहीं फ्रेंडशिप, उनका एक प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है। पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बच्चे की खुशी का मामला है, हम बच्चे का फ्रेंड नहीं बन सकते। आजकल पेरेंट्स में है कि हम ही फ्रेंड है, पेरेंट्स को अच्छा पेरेंट बनना ज़रूरी है, वो फ्रेंड्स ना बने अच्छा है बिकॉज बच्चे के मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उनको अपना एज ग्रुप चाहिए, उनको वो नॉन जजमेंटल होता है और वो अपनी फ्रेंडशिप को चलाते चलाते बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं। Thanks, Mom. Friends, this question helps children understand how relationship works, feel empathy for others and learn how to solve problems. बिल्कुल दी, अगर कोई समस्या हो तो शांत मन से उसका हल निकालना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारी मस्ती की पाठशाला में आए और हमें और हमारे फ्रेंड्स को एक मेंटल वेलबींग के साथ साथ अपनी फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए सिखाया। थैंक यू You're सो most मच। welcome. Thank you for having me here. पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। डू यू नो ये फैक्ट्स है थोड़े यूनिक ब्रो, और सवाल होंगे थोड़े ट्रिकी और उसके जवाब देंगे हमारे स्टार चतुर और सुपर क्विकी। तो फ्रेंड्स हो जाइए तैयार, क्योंकि अब चलेगा दिमाग का जादुई चक्कर। सवाल होंगे मजेदार, जवाब देंगे हमारे छोटे स्टार। हेलो मेरे प्यारे छोटे चैंपियन दोस्तों, आज दिमाग चलेगा टॉप गियर में और क्विज होगी फुल स्पीड में। तो क्या सब लोग तैयार हैं? सब लोग हैं तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। तो मेरा पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा। अगर आप और आपके दोस्तों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उसे इग्नोर करेंगे, ऑप्शन बी शांत होकर बात करेंगे और समस्या का हल ढूंढेंगे, या फिर ऑप्शन सी दूसरे दोस्तों से उसकी शिकायत करेंगे। बताओ क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन बी शांत होकर आंसर निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब, तालियां। भाई मेरा मकसद यही है कि हम सीखे और अपने दोस्तों को मजबूत बनाएं, क्यों दोस्तों? तो मेरा अगला सवाल है, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड फ्रेंड? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑलवेज अग्रीइंग विद यू, ऑप्शन बी listening and showing empathy, option C sharing all secrets with others, या फिर option D letting you have your way all the time। तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? The answer is B, listening and showing empathy. हाँ बिल्कुल सही जवाब, तालियां। Listening and showing empathy. A good friend listens and empathizes. He understands your feelings and perspectives. समझे? तो चलिए अब पूछते हैं अपना अगला सवाल। ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है? तो मेरा अगला सवाल है, when witnessing two friends arguing, what is an appropriate action to take? जब दो दोस्तों की लड़ाई हो रही होती है तो आपको उसके बीच में क्या करना चाहिए? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टेक साइड्स विद द फ्रेंड यू अग्री विद, या फिर ऑप्शन बी encourage them to fight it out, या फिर ऑप्शन सी help them talk through their disagreement respectfully, या फिर ऑप्शन डी ignore the situation।
ऐसी सिचुएशन में तुम लोग क्या करोगे? बोलो बोलो। ऑप्शन सी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, तालियां। ऑप्शन सी। Help them talk through their disagreement respectfully. Very good, very good, very nice. और अब मैं पूछता हूँ अपना अगला सवाल। भाई ध्यान से सुनना। Why is it important to understand your friend's feelings during a conflict? और आपके ऑप्शंस हैं to find their weaknesses. Oh no. और ऑप्शन बी है to manipulate them. Oh. या फिर ऑप्शन सी to reach a fair and understanding resolution. या फिर ऑप्शन डी to prove you are right. हाँ, काफी कॉम्प्लेक्स सवाल है। तो कौन देगा इसका जवाब? The answer is C. To reach fair and understanding resolution. ओ बिल्कुल सही जवाब, तालियां। To reach a fair and understanding resolution. दोस्तों, हमें एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए। यही तो होती है दोस्ती। और अब मेरा आखिरी सवाल, What does compromise in a friendship involve? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, one friend always giving in to the other's wishes, या फिर ऑप्शन बी, both friends making mutual concessions to resolve differences, या फिर ऑप्शन सी, avoiding disagreements to maintain harmony, या फिर ऑप्शन डी, agreeing to disagree without finding a solution। बहुत ही मुश्किल सवाल है। तो दोस्तों बताओ क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? बोलो बोलो, टेल टेल। इसका जवाब ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी। ये तो गलत जवाब है। क्या कोई और ट्राई करना चाहेगा? Anybody else? The answer is option D. ऑप्शन डी। ये भी गलत जवाब है। मैंने कहा था ना, बहुत ही मुश्किल सवाल है। क्या कोई और ट्राई करना चाहेगा? Anybody else? The answer is option B. ओ बिल्कुल सही जवाब, तालियां। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Both friends making mutual concessions to resolve differences, यानी कि दोनों दोस्तों को आपस में बात करके अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करना चाहिए। समझे? तो यही तो होती है दोस्ती। दोस्त होते हैं हमारे कितने मजेदार। दोस्तों, आपने मैजिक तो देखा ही होगा, पर क्या आपने देखा एक ऐसा मैजिक बॉक्स जिसमें छुपा है सिर्फ सरप्राइज, सस्पेंस और वाव? और इस बॉक्स में होंगी कुछ छोटी छोटी चीजें, पर उन छोटी छोटी चीजें में होंगे कुछ बड़ी बड़ी बातें और राज। तो आइए, आंखों को खोलिए और सांस को रोकिए और मिलते हैं हमारे जादूगर राहुल कुमार बरनवाल। वेल, क्या तुम भी कर रहे थे मेरा इंतजार? मैं भी था तुमसे मिलने को बेकरार और दिखाने को
ढेर सारे जादू मजेदार। माय नेम इज राहुल बरनवाल। स्वागत है आपका मेरे शो मस्ती की पाठशाला में। मैं आपको अभी कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूं और मैं इसमें अभी यूज कर रहा हूं फ्रेंड्स, एक 20 रुपीस की करेंसी है, आप देख सकते हैं, और मैं एक पेन यूज कर रहा हूं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी मैजिक हम नॉर्मल चीजों से कर सकते हैं। ये दिखने में छोटा है दोस्तों, लेकिन आपको हैरान कर देगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आई एम यूजिंग ओनली 2 थिंग्स। One is pen and another is a bill, a currency of 20 rupees. So let's see what I am going to do here. So friends, आपको देखना है कहाँ? Right here. यानी कि गांधी जी के स्माइलिंग फेस के ऊपर। Let's see. 1, 2 and 3. Let's see now what's happening here. Great. Let's see. कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। है ना मजेदार? लेट्स सी अगेन। 1, 2 and 3। आपको ऐसा लगा कि ये नोट जो है वो फट गया? लेट्स सी। तो फ्रेंड, अगर कोई होल हुआ भी होगा तो वो वैनिश हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूं मैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। तो दोस्तों, हमारे मैजिक बॉक्स का सफर यहीं तक था। थैंक्स टू राहुल कुमार बरनवाल। Thank you everyone. I hope you all had a great time. अभी आपसे जीनियस प्यारा लेगा विदा। मिलते हैं अगले हफ्ते। See you next week. Bye bye. तो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आर ईमेल मस्ती की पाठशाला dd@gmail.com। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में विद न्यू इंटरेस्टिंग क्विज, नई जादुई ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग कहानियां और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ हमारी मस्ती की पाठशाला में। तब तक के लिए पढ़ो, सीखो और मस्त रहो। बाय बाय।